बिल्कुल दुरुस्त समत में आगे जा रही हैं। Iran can never have a nuclear weapon. Would you ever go to Pakistan to seal the deal yourself? I would go to Pakistan, yeah. Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go. Yeah. I might go. If the deal is signed in Islamabad, I might go. The field marshal has been great. The prime minister has been really great in Pakistan. So I might go. They want me. The First Lady last week called on Congress to further look into and uncover the truth on the Epstein files, the Epstein saga. Do you believe that there should be a public hearing for more of these Epstein survivors? Well, I'm okay with it. I think we've had a lot of public hearings. I'm okay with it, but I understand that the women didn't want to go under oath. That's what I heard, that the women, the victims or whatever, they refused to go under oath, which was a little surprising. So Melania felt strongly about it because she was accused of that I met her through Epstein, but it turned out to be totally false. It was a false story. Mr. President, Don't the ceasefire also include Iraq and region? Are we talking about the one with Lebanon? Lebanon, Iraq, and The whole thing. So we just made a deal with Lebanon. As of 2 hours from now, we have a ceasefire with Israel and Lebanon, and that'll be great. And they'll be meeting, probably coming to the White House over the next 4 or 5 days. And that'll be the first time they've met in 44 years, which is pretty unneighborly when considering they're neighbors. But there's a really good chance that that'll work out with Lebanon and Israel. I met with, through the telephone, with the president of Lebanon, who's a really good guy, highly respected, and with Bibi. And I think there's a chance we'll be meeting right here in the not too distant future. Israel and Lebanon have tried to make peace before. What's going to be the difference this time? Me. I'm with you. Big difference. Me. Australia has announced about taxes. States like Virginia, North Carolina, and New York, Democratic states are looking at raising taxes. Is that going to take away from the tax cuts that What's you have? happened? No, because, no tax on tips. I'm going over no tax on tips today. That's why I'm going to Nevada. I'm going to Arizona. But this is sort of a no tax on tips. What's happening is people are finding out that in their tax returns, they're getting a big refund, much bigger than they thought. So it's no tax on tips, no tax on Social Security, no tax on overtime. I think wait. I think it's going to be amazing. But if you look at what they're doing in New York and California, they're raising taxes and they're driving people out. It's a shame. Australia has just announced that it's increasing its defence spending to 3%. You've been asking for 3.5%. Are you satisfied? Well, we're going to see what happens. But on defense spending, look, we built the greatest military anywhere in the world. There's nobody even close. All you have to do is take a look at the blockade. Nobody's ever seen it. President Donald Trump still speaking to reporters. से गुफ्तगू करें। उन्होंने कहा कि अगर ईरान के साथ डील हो गई तो इस्लामाबाद जाऊंगा। पाकिस्तान वाहिद सालिस है और पाकिस्तान ने सालिसी का बेहतरीन किरदार अदा किया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अजीम आदमी हैं। ईरान के साथ डील हो गई तो इस्लामाबाद जाऊंगा, डोनाल्ड ट्रंप ने वाजे कर दिया। अगर ईरान के साथ डील हो गई तो डोनाल्ड ट्रंप इस्लामाबाद आएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान आने का इंदिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुज़ाकरात में बेहतरीन सालिस साबित हुआ है। वाहिद पाकिस्तान सालिस है जो कि बेहतरीन काम कर रहा है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म अजीम इंसान हैं और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अजीम इंसान हैं। ईरान के साथ डील हो गई तो इस्लामाबाद जाऊंगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान आने का इंदिया दे दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि अगर ईरान के साथ डील हो जाती है तो वो पाकिस्तान आएंगे, इस्लामाबाद आएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अजीम आदमी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान बेहतरीन सालिस के तौर पर साबित हुआ है। पाकिस्तान वाहिद सालिस है जो कि मुज़ाकरात में बेहतरीन काम कर रहा है। उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अजीम इंसान हैं। इससे कबल उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतें नीचे आ रही हैं। ईरान डील करना चाहता है। अगर ईरान के साथ डील नहीं होती तो दोबारा जंग होगी।
डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान आने का इंदिया दे दिया है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान के साथ डील हो जाती है तो मैं इस्लामाबाद आऊँगा। पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुज़ाकरात में बेहतरीन पेशरफ्त कर रहा है और बेहतरीन सालिस के तौर पर पाकिस्तान अपना किरदार निभा रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अजीम आदमी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान के साथ मुआहिदा हो जाता है तो मैं इस्लामाबाद आऊँगा। इसी पर हम मज़ीद बात करते हैं। डॉक्टर हामिद मशरक़ी हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इस वक्त जो गुफ्तगू की गई है सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, बहुत पुरुम्मीद खुद भी नज़र आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर डील नहीं होती तो जंग होगी, लेकिन उम्मीद है कि डील हो जाएगी, मुआहिदा हो जाता है तो मैं इस्लामाबाद आऊँगा। क्या कहेंगे इस गुफ्तगू के बारे में? जी, जी, बहुत खुशाइंद है और मैं समझता हूँ कि सदर ट्रंप जो चाहेंगे कि क्रेडिट जो है वो फाइनली उनके हाथ में ही हो और जो अमन का जो एग्रीमेंट है वो खुद साइन करें। और पाकिस्तान का देखिए ये अल्लाह ताला की तरफ से है कि पाकिस्तान को एक बड़ा बाइज़्ज़त रोल मिला है। पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल साहब ने और प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी हिम्मत से, बड़ी मैं समझता हूँ कि दलेरी से ये सारा डिप्लोमेटिक महाज संभाला और आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम जो है वो इज़्ज़त और तकरीम से लिया जा रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल प्रेसिडेंट ट्रंप जो आएँगे वो उसके साथ-साथ बहुत सारी और चीज़ें बिल्कुल, ग़ालिबन हमारे इस वक्त राब्ता भी हों, इस्लामाबाद बना रहे। गुफ्तगू और जी, जी, हामिद साहब बोलिए। जी, जी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान के लिए ये बड़ी बाइज़्ज़त और इज़्ज़त का मुकाम भी है और पाकिस्तान के साथ-साथ पूरी दुनिया के लिए ये अमन की नवीद है। और वो जो जंग की बात कर रहे हैं, मेरा ख़्याल है वो सिर्फ़ एक टैक्टिक्स हैं प्रेशराइज़ करने के दोनों तरफ से। लेकिन जिस तरह फील्ड मार्शल साहब इस वक़्त ईरान में मौजूद हैं, बहुत सारे मामलात तय पाने की यकीन है। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो सऊदीया, कतर और फिर तुर्की से बड़ी खुशाइंद हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप के आने की बहुत उम्मीद भी है। और वही 1-2 दिन से पहले भी ये बात हो रही थी। और इस्लामाबाद जो है वो एक बार फिर दुनिया का मरकज़ निगाह है और दुनिया सारी पाकिस्तान को अमन का पैगंबर के तौर पे देख रही है। बिल्कुल, दुनिया सारी पाकिस्तान को अमन के पैगंबर के तौर पर देख रही है। डॉक्टर साहब हमारे साथ रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार एहतशामुल हक साहब ने। एहतशाम साहब, जो बात हो रही थी आपसे भी गुज़िश्ता दिनों जो गुफ्तगू हो रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे या नहीं आएंगे, अब वो खुद कह रहे हैं कि अगर मुआहिदा हो जाता है तो इस्लामाबाद आऊँगा। इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा जंग के हवाले से ईरान और इराक, अमेरिका के, और प्लस हमारे इस रीजन में जो पाकिस्तान का एक स्ट्रेटेजिक महाज पे आप देख लें, एक मिडल पार्क के तौर पे सामने आना, नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर के तौर पे हिंदुस्तान पीछे और आगे हो जाना, ये बहुत बड़ी बात होगी। परसों में ये बात कर रहे थे, आपको याद होगा मुझे, तो मैंने भी इस पर बात कही थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ना वो 7-8 जंग बंद कराने के वो आप क्लेम कर चुके हैं।